Good morning, students. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to all of you, beta. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay. So, dear students, Yes, do sir. you have any doubt? Whatever No, we no, have sir. studied, No, sir. अभी No, तक sir. हमने जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है. Okay. So now all of you please switch off your mics. ठीक है. So I am going to start presenting the screen. Okay. Yes. Is the textbook visible now? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Visible. ठीक है, कोई बात Yes, sir, नहीं. visible. Just a minute. Dear students, what I remember, we have so far completed up to this section. Okay. Now, we have completed in yesterday's session this last line. Okay. ये वाला हमने कल के सेशन तक कंप्लीट किया था. So we have discussed so far the 5 features of secularism. Sorry, 5 features of our constitution. Okay, so the last feature that we have discussed, जो आखिरी फीचर हमने डिस्कस किया था वो क्या था? सेकुलरिज्म. Secularism, a secular state is one in which the state does not officially promote. ये किसका माइक ऑन है? So a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religion. यानी secular form of government में state मतलब कंट्री की गवर्नमेंट. ठीक है. तो स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो क्या नहीं करेगी? किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी भी एक धर्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगी. तो गवर्नमेंट के लिए सारे रिलीजन कैसे होंगे? सेम होंगे. दिगेश बारहटे, इतनी बात आई समझ में? Sir. Okay. So you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopt for himself. ये लाइन बेसिकली क्या बोलती है कि country's history often determines the kind of constitution that a country adopt for themselves. यानी किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है, किसी कंट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया है, तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है? उस कंट्री की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. तो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन सारे विचारों को, लोगों के विचारों को पेश करता है जिसके जरिए कंट्री के जो सिटीजन्स है अपनी कंट्री को कैसा बनाना चाहते हैं. तो देश के लोग, कंट्री के लोग अपने देश को कैसा कंट्री बनाना चाहते हैं वो किसके जरिए पता चलता है?
it is reflected through the constitution. Okay, just like in the game of football, जैसे जो फुटबॉल के गेम का हमने एक एग्जाम्पल लिया था, है ना, उसमें क्या हुआ था कि a change of constitutive rule will affect the game. जैसे ही कॉन्स्टिट्यूटिव रूल यानी उस खेल को खेलने के नियम बदलते थे, वैसे के वैसे ही पूरा का पूरा खेल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. ठीक, पिछले 72 to 73 years में, है ना, पिछले 73 से 74 सालों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड. अमेंडेड का मतलब होता है बदलाव करना. तो 1950 से लेकर आज 2021 लगभग 72 सालों में कई बार उस पुराने 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए ताकि जो नया पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्या किया जा सके, अडॉप्ट किया जा सके. ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री. ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ वही चेंज किए गए जिसके जरिए ये अभी किसका माइक ऑन हुआ था, प्लीज नेम योरसेल्फ. अभी किस स्टूडेंट का माइक ऑन हो गया था? ऐसिन मोबाइल सर. माइक किसका ऑन हुआ था? डोंट नो सर. वेदश्री यस सर. अभी किसका माइक ऑन हुआ था? डोंट नो सर. You can click on that mute all option so everyone mic will be off. Beta, I have done that also, but again from the student side it could be on. Okay sir. So Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of polity, often a major change in the Constitution. ठीक है, so Constitution में यदि कोई major change, बड़ा बदलाव होता है, ठीक है, so वो Constitution के fundamental nature को क्या कर देगा, change कर देगा. The different features of Indian Constitution involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Okay, so don't worry too much about this. In rest of the book as well as in our higher classes, we will read the different features of Indian Constitution and we understand more substantively what they mean. ठीक है, so Indian Constitution के जो features हमने, है ना, ऊपर पढ़े, इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, यानी जो 5 फीचर हमने पढ़े वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज हैं. कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है. ठीक है, इसलिए उनको बहुत अच्छे से समझ पाना इतना आसान नहीं है. बट आने वाले 3 साल इन स्टैंडर्ड 8
then in standard 9, and then after in standard 10. Okay, in coming 3 years we will read more about all these different features of the Indian Constitution, and we will try to understand more substantially what they mean. Okay, so just a minute. Yes. Now, dear students, one or two small things have been left, and that is what this section. Now, here we have been given with the fundamental rights in the Indian Constitution. हमें Indian Constitution के fundamental rights यहाँ पर दिए हुए, ठीक है? So, we are having how many fundamental rights? How many fundamental rights have been given? 5. 6. Chinmay, how many fundamental rights have been given? 6. 6 fundamental rights. Total how many fundamental rights? 6. Advaita, Yes, sir. how many fundamental rights? 6, sir. 6. Vedshri, how many fundamental rights? 6, sir. 6. Tanmay Gokhare, total how many fundamental rights? 6, sir. 6. So, the first right which is being given is right to equality. Now, right to equality means all the persons, all the people living in the country, all the people living in the country are supposed to treat equal before the law. यानी देश के सारे लोगों को कानून के हिसाब से कैसा ट्रीट किया जाएगा? इक्वल ट्रीट किया जाएगा. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. देश के जो लॉज हैं, कंट्री के जो लॉज हैं, वो सभी के लिए कैसे होंगे? इक्वल होंगे. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. तो राइट टू इक्वलिटी और क्या कहता है कि कंट्री के किसी भी सिटीजन को क्या नहीं किया जा सकता? डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. सो नो सिटीजन ऑफ द कंट्री could be discriminated on the basis of their religion, caste or sex. किसी भी व्यक्ति को discriminate नहीं करें. Every person has access to all public places, including playground, hotels, shop, etc. ठीक? Every person यानी कंट्री के हर व्यक्ति को सारे पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक मतलब सार्वजनिक जगहों पर जाने की परमिशन है. द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना. स्टेट मतलब कंट्री की गवर्नमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट यानी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती. ओके, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस कंडीशन. ये जो हमने कंडीशन डिस्कस करी इसके कुछ एक्सेप्शन मतलब कुछ केसेस में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है.
and that we will read about in this book later. इस बुक में उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. Then under the right to equality, the practice of untouchability has also been abolished. ठीक है, अनटचेबिलिटी भी क्या कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया. ठीक. Now then next fundamental right is right to freedom. What is the next fundamental right? Right to freedom. Now, so what does the right to freedom mean? The right to freedom includes the right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. यानी right to freedom में इतनी सारी freedom, these many freedoms are available to us. कौन कौन सी? Freedom of speech and expression, then right to form association, then right to move freely and reside in any part of the country. Okay, right to practice any profession, occupation or business, then right against exploitation, and the इतना बात आया समझ में? So these many freedoms are available. कंट्री के लोगों को इतनी freedoms क्या है? Available. Then next is right against exploitation, then right to freedom of religion. Now what is right against exploitation? Under this, the Constitution prohibits human trafficking. यानी right against exploitation में human trafficking. Now, Tanmay Gokhre, do you know the meaning of human trafficking? No, sir. Human trafficking का meaning मालूम है? No, sir. ठीक. Just a minute. Yes. Pragya Bhumiya, do you know what is the meaning of human trafficking? No, sir. Now, I will explain. Human trafficking means selling and buying of human beings. What is the meaning of human trafficking? Selling and buying. So human trafficking is what? Selling and buying of human beings. ठीक है. अब क्या पॉसिबल है कि ह्यूमन बीइंग्स को सेल और बाय किया जा सकता है? No, sir. No, sir. अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है ना. भाई देखो, हमारे घर में कोई काम करने वाला है नहीं, काम करने वाली बाई नहीं है ना, तो कहीं से जाकर के एक बाई खरीद के ले आओ. क्या पॉसिबल है? या अच्छा लगेगा? No, sir. No, sir. So, है ना, बहुत गलत प्रैक्टिस है, खराब प्रथा है. What? Selling and buying of human beings. ठीक है. परंतु होता क्या है? As on today, आज के तारीख में ये प्रैक्टिस नहीं है, खत्म कर दी गई. खत्म क्यों कर दी गई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इट प्रोहिबिट्स. कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है 1950 के बाद से इंसानों की खरीदी बिक्री का जो सिस्टम चला आता था वो खत्म हो गया. परंतु इंडिया की आजादी के पहले और उसके भी काफी पहले समय तक क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में और इंडिया में होती थी. इतनी बात आई समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंसानों को बाकायदा खरीदा बेचा जाता था। क्या किया जाता था? क्या किया जाता था बेटा? बेचा जाता था। खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, क्या जाता इंसानों की खरीदी बिक्री होती थी, दैट इज नोन एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसको क्या कहते हैं? Human trafficking. Human trafficking. So likewise, there was a system of forced labor. इसी तरीके से एक सिस्टम था जो क्या कहलाता था? फोर्स्ड लेबर। ना फोर्स्ड लेबर मीन्स मजदूरों से जबरदस्ती बंधुआ मजदूर के रूप में क्या करवाया जाता था? काम करवाया जाता था। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इयर्स ऑफ एज, यानी 14 इयर्स से 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए रखा जाना मना है। यदि रखेंगे देन दे विल बी पनिश्ड। ओके, देन नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स देश के हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से वह जो धर्म अपनाना चाहे उस धर्म को अपनाने का पूरा पूरा अधिकार है। सो रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। देश के सभी लोगों को क्या रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। यानी देश के हर व्यक्ति को ये फ्रीडम है, आजादी है कि वो अपनी मर्जी से जिस धर्म को भी एक्सेप्ट करना चाहे उस धर्म को वो एक्सेप्ट कर सकता है। प्रोफेस मतलब उसे अपना सकता है, और प्रोपेगेट मतलब अपने धर्म का एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार कर सकता है। शारदा कौरा से did you understand up to this section? शारदा, गौरव बडस्कर, योगेश्वरी, योगेश्वरी is my word. हाँ, गुड बेटा। गौरव बडस्कर, शारदा कौरा से, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। Sir, हाँ, यस अद्वैता। sir, what is the meaning of profess and propagate? प्रोफेस मतलब अपनाना, प्रोफेस मतलब अपनाना। Nana. हाँ, अब प्रोफेस का मतलब अपनाना। तो अपनाना का सेंस यहाँ पर क्या है कि मान लो कोई एक व्यक्ति का जन्म किसी एक दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाली फैमिली में हुआ है ना? तो उस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है कि वो व्यक्ति अपनी मर्जी से अन्य किसी धर्म को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। वो व्यक्ति अपनी मर्जी से क्या कर सकता है? किसी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है? प्रोफेस। चिन्मय बोधाने। यस सर। बेटा जब तुमको कुछ बोलना नहीं था तो इतनी देर माइक ऑन करके क्यों रखा? सॉरी सर।
चलिए, अद्वैता समझ में आया? प्रोफेस Yes, sir. ना, प्रोपेगेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेट? प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रचार करना। प्रचार मतलब अपने धर्म का एडवर्टाइजमेंट करना, है ना। सो हम अपने हिंदू धर्म का, या कोई भी व्यक्ति जो उसके धर्म को मानता है, उसका वो क्या कर सकता है? प्रचार प्रसार, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, अपने धर्म की अच्छाइयां अन्य लोगों को बता सकता है। गॉट इट? दैट इज व्हाट Yes, sir. प्रचार करना। सो दैट इज व्हाट प्रोफेस एंड प्रोपेगेट, रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, जिस धर्म को वो पसंद करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Now, what is the cultural and educational rights? The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में ये बताया गया है कि ऑल माइनॉरिटीज, यानी जो भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी में हो, लैंग्वेज के बेस पर माइनॉरिटी में, दे कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उन्हें आजादी है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान यानी स्कूल ओपन कर सकते हैं, एंड देयर दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर। एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ व्हाट इज दिस फंडामेंटल राइट? ये जो फंडामेंटल राइट है, जिसको यहाँ क्या नाम दिया गया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मीनिंग क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो दिस allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। यानी इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या होगा? इसमें कंट्री के सिटीजन को, देश के हर नागरिक को ये अधिकार है कि यदि उस नागरिक के, उस सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, यानी उस व्यक्ति को यदि उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? देन द पर्सन कैन गो टू द कोर्ट। वो व्यक्ति किसी कोर्ट में जा सकता है, अदालत की शरण में जाएगा और अदालत में अपनी एप्लीकेशन देगा कि माय फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, मेरे ये फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, और इसलिए मुझे मेरे ये फंडामेंटल राइट्स क्या किए जाएं? दिलवाए जाएं। तो कोर्ट किसको ऑर्डर देगी? कोर्ट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर देगी। कोर्ट किसको ऑर्डर देगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? Government of India. कोर्ट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर देती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिर ये जिम्मेदारी बनेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस सिटीजन को क्या प्रोवाइड करे? उसके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे। इज इट क्लियर? हाँ, Yes, sir. now stop. Sir, what is Now please ask your question. Yes beta, sir, what is the meaning of linguistic? who has asked this question? Sir, Saksham. Saksham,
बेटा लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज का सेंस क्या है? मान लो हम यहाँ पर चंद्रपुर जिले में रहते हैं, ओके, सो विच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल आर इन मेजॉरिटी? कौन सी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पर? मराठी। ठीक, इसका मतलब हिंदी बोलने वालों की संख्या कैसी हुई? माइनॉरिटी हुई। यदि कोई गुजराती लैंग्वेज स्पीक करते हैं तो गुजरातियों की संख्या क्या होगी? माइनॉरिटी में होगी। गुजरातियों की संख्या कैसी होगी? माइनॉरिटी। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि किसी एरिया में एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कैसी है? अन्य लोगों की तुलना में कम है। तो वो जो कम संख्या वाले लोग हैं, जो कम संख्या वाले लोग हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहा जाता है। कम संख्या वाले लोगों को क्या कहा जाएगा बेटा? Linguistic minority. Linguistic minority. वो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले लोग हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंडर में ये फ्रीडम है, ये आजादी दी हुई है कि वे लोग क्या कर सकते हैं? वे लोग अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वह जो भाषा है उस भाषा को लिखाया और पढ़ाया जाएगा, ताकि वे लोग अपनी भाषा और अपने कल्चर को क्या कर सकें? प्रिजर्व करके रख सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो चंद्रपुर जिला है, ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से क्लोज है। तो बलारशाह, चंद्रपुर, कोरपना, गढ़चंदूर, इन इलाकों में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनकी मातृभाषा मराठी ना होकर के क्या है? तेलुगु है। ठीक है, अब अपना व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए ये लोग कहाँ? तेलंगाना छोड़कर यहां पर आकर के बसे हुए। तो इन लोगों को ये अधिकार है कि ये लोग क्या कर सकते हैं? अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान मतलब स्कूल ओपन कर सकेंगे और उन्हें इस बात की परमिशन होगी कि वो लोग रहने को महाराष्ट्र में हैं, परंतु उनके स्कूल में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है? तेलुगु लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है। अब इसके जरिए जितने भी तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को अपनी उस स्कूल में एजुकेशन के लिए भेजेंगे, ताकि क्या हो सके? महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे कोने में रहते हुए भी वो लोग क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को वह लैंग्वेज सिखा पढ़ा सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Good. So Yes, sir. that is what the cultural and educational right, उसको क्या कहेंगे हम? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Sir. Yes, sir. Now listen. There is next activity for your portfolio. आपके पोर्टफोलियो के लिए अगली एक एक्टिविटी मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज पोर्टफोलियो एक्टिविटी, ओके। अब इसका जो नंबर है वो आप ध्यान से लिख देना है ना। यदि मैंने अभी तक 4 एक्टिविटीज दी हैं तो दिस कुड बी एक्टिविटी 5, ठीक। इसका जो भी सीरियल ऑर्डर नंबर है, सो दिस कुड बी मान लो एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एक्टिविटी? विच फंडामेंटल राइट विल द फॉलोइंग सिचुएशंस वायलेट? हमने अभी 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। रितांशु, रितांशु, Yes, sir. ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमने अभी पढ़े। इसका माइक ऑन रह गया? ये 6 फंडामेंटल राइट्स अभी हमने पढ़े। अब इनमें से हर एक कंडीशन में कोई ना कोई एक फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। सो दिस यू हैव टू राइट इन योर पोर्टफोलियो नोटबुक। नाउ वेदश्री भोजेकर, ओनली यू स्पीक। Okay, sir. अब ये बताओ वेदश्री, ये जो एक्टिविटी है ये आप पोर्टफोलियो नोटबुक के रूलिंग पेजेस में करेंगे या फिर प्लेन A4 व्हाइट पेपर में करेंगे? Sir, in portfolio notebook. हाँ, क्योंकि इसमें कोई ड्राइंग या और कोई चीज करने की, काम करने की जरूरत नहीं। ये सीधा सीधा क्या है? रिटन वर्क है। तो डायरेक्ट रिटन वर्क है, इसलिए इसको A4 साइज प्लेन पेपर में करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया अर्जुन? अर्जुन, बात समझ में आई? Yes, sir. अद्वैता, बात समझ में आई? Yes, sir. तन्वी बोभाटे, बात समझ में आई? Yes, sir. गुड। अच्छा, you have joined it today only, so you should talk to your friends, okay, that what or how many activities or which are the activities given for portfolio. समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। Now, so this is your today's homework. ये आज का आप लोगों का टास्क है। ये एक्टिविटी को आप लोगों को क्या करना है? परफॉर्म करना है। टुमारो वी विल हैव अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन ऑन दिस वन, ओके, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर इन सिविक्स, ठीक। चलिए, अब ये एक्टिविटी के बाद वो एक्टिविटी नंबर मान लो 4 था, तो एक अगली एक्टिविटी है, आप लोग लिख लीजिए। द नेक्स्ट एक्टिविटी आई एम असाइनिंग, ठीक। तो नेक्स्ट एक्टिविटी मैं आप लोगों को असाइन कर रहा हूं। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या कहलाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट, INTEREST। यदि नहीं लिख पाओ तो बाद में या इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, LITIGATION। अभी दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. तो लिख सको तो लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो।
सो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका जो भी नंबर होगा 4 होगा 5 होगा. नाउ यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट Public interest litigation. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. All of you are very good students, okay? And the best student is Shiv Ganga. Shiv Ganga, are you there? Shiv Ganga. Yes, sir. Very good. So please switch on your video. Video on करो जरा. Very good. Just a minute. I will stop. Shiv Ganga. Shiv Ganga, switch on your video. Yes. अच्छा, so you are Shiv Ganga. Very good, very good. ठीक है. Good morning, बेटा. Good morning, sir. Have you taken your breakfast? Yes, sir. Okay, good. So what had you today in the breakfast? Idli. Idli. I also like it, है ना? Mm. And I like masala dosa also. Mm. चलिए. So tomorrow we will have a small video on some food items. ठीक है? So Okay, we are sir. winding up the sessions here only.